بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ملت اسلامیہ کسی ایک نقطے پر جمع نہیں ہوتی۔ آج لندن میں 2 عیدیں ہیں، بہت سارے دوستوں نے آج منائی ہے جو سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، اور بہت ساروں کی کل ہوگی۔ بہرحال سب کو عید مبارک ہو، جو آج کر رہے ہیں، جو کل کر رہے ہیں۔ آج میں ایک الگ موضوع پر عرض کرنے والا ہوں۔ تبلیغ پر بہت کچھ میں کہہ دیا ہے اور شاید اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے عزم کیا ہے کہ آج کے بعد سے ملت اسلامیہ کے اجتماعی مسائل اور بڑے مسائل پر زبان کھولوں گا۔ ہندوستان میں مسلمان جس حالت میں ہے وہ آیا ہے، یعنی جب سے یہ ٹیم آئی ہوئی ہے RSS کی اور برہمن آباد کی، تو ان کا تو منصوبہ ہے اسلام اور مسلمان کو خورش کر پھینک دینا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے ہر ایک نے گھروں بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ملت اسلامیہ ہند کا ایک رہنما ہوتا، سیاسی رہنما کی، یعنی اجتماعی معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ کئی بار میں نے اپنے گاؤں میں سنا، مفکر اسلام مولانا علی میاں فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ پتہ نہیں خدا کے وہاں پر ہمارا کیا بنے گا، کیا جواب ہوگا۔ اتنی بڑی ملت اسلامیہ، جبکہ 3 آدمی سفر میں جائیں تو ایک امیر بنانے کا حکم ہے، اس کا کوئی اجتماعی معاملات میں امیر نہیں ہے، اور بغیر امارت کی موت کو جہالت نہیں، جاہلیت، کفر کی موت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہماری دین اور دنیا کی تقسیم کا جو ذہن بن گیا تھا نا صدیوں سے، کہ جو دیندار سمجھتے تھے وہ دنیا میں دخل نہیں دینا، اور سب سے بڑا بزرگ وہ جو دنیا سے بالکل ناواقف ہو۔ اس ذہن نے بڑا نقصان پہنچایا، اور کچھ اللہ کے بندے جیسے مولانا سجاد بہار والے، ان کے بارے میں مولانا منظور نوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار فرمایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ بصیرت والا اور ان سے زیادہ ملت کا درد و غم رکھنے والا آدمی نہیں دیکھا۔ ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی، اس پر یہاں بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہ حضرت شیخ الہند کے پاس آخری وقت میں پہنچے، اور حضرت شیخ الہند اس حالت میں تھے کہ نہ بول سکتے تھے، نہ ہل سکتے تھے، نہ کروٹ لے سکتے تھے۔ اس کے 3-4 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے امیر الہند ان کو بنانا تھا، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھے۔ حضرت شیخ الہند کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ خدمت میں بہت روئے اور بہت عرض کی حضرت کچھ کیجئے، لیکن حضرت مدنی کی ایک اپنی سوچ تھی، وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے مجبور ہو کر اڑیسہ اور بہار میں عمارت شریعہ قائم کر دی۔ آج تک الحمدللہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، عصری ادارے بھی بن رہے ہیں، دینی ادارے بھی، اور خدمت خلق بھی بڑا کام ہے، میں ہمیشہ دیکھا ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ کا ایک آدمی بتا دیے جس کو ہم کہہ سکیں یہ ہے ملت اسلامیہ کا ذمہ دار، 25 کروڑ کی آبادی ہے کم از کم، اور سیاسی طور پر ہم جو ہے وہ ان پارٹیوں کا غلام بن گئے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتی ہے۔ دیکھیے، ہمارا
रवैया मनफी है। यानी हम यानी 70 साल हो गए आज़ादी को, इससे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि अभी तक हम ये यानी मनफी रवैया का, जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो। अब जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती थी बाद में हमारा इस्तेहसाल करती थी, हम पर एहसान जताती थी कि हमने मुकाबला किया बीजेपी का, हारे या जीते। और अभी तक हम उनके हाथों में खेल रहे हैं। सबसे बड़ा बेईमान ये मुलायम सिंह यादव था। ये आ जाता था देवबंद में कि मैं मुसलमान हूं और आपको देना फर्ज है। और बस सबसे ज़्यादा मैंने कई मरतबा उससे दिल्ली में भी बात की। मौलाना याकूब मुज़ाहरी सहारनपुरी गवाह हैं। और एक मरतबा उसके बेटे से लखनऊ में हमारे नदवतुल उलमा के जो एक उस्ताद हैं नसीर साहब, वो भी थे, नबी बख्श साहब भी थे, और साथ मौलाना याकूब साहब और उनका ग्रुप भी था। और तकरीबन वो तो जेल में थे, मायावती की हुकूमत थी। अचानक रात को फ़ोन आया कि मैं अभी रिहा हो गया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। हम लोग पहुँचे और घंटा भर बात की। और वो हर चीज़ वहाँ, बड़ा मुनाफिक आदमी। उसका बाप का भी यह हाल था कि आखिरी बात उसकी पार्लियामेंट में तकरीर ये थी कि ऐसी सेटअप मैं चाहता हूँ आंध्र इलेक्शन में, और मोदी साहब को उसका रहनुमा चाहता हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वजीर आजम। और संभल ज़िला अलग हुआ। हमेशा से अहले संभल, जो मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका है, 60-70% इस खबीस को वोट दिया है। और इसने ज़िला का हेड क्वार्टर संभल को, कि मुसलमान को कोई फ़ायदा न पहुँचे, बनाने के बजाय एक दूर जहाँ इसके यादवों की बस्ती थी उसको बनाया है। ये हाल सब ने किया। मायावती इतनी बेईमान साबित हुई कि हमारे वोट लेकर हमारी पांव काटे हमेशा, और इस तरह सब ने किया। अभी ताज़ा मसला चल रहा है पंजाब का। तो राहुल गांधी की कैबिनेट में बेशुमार सिख हजरात हैं। उनमें से 4 जो उससे बहुत करीब हैं, उसकी जो किचन कैबिनेट है, उनको भेजा सिद्धू की हिमायत के लिए, लेकिन कोई मुसलमान उसकी कैबिनेट में नहीं है। हर जो छोटे छोटे अकलियत उसके भी हैं। और इंदिरा गांधी ने तो हमें तबाह कर दिया। सारे बड़े बड़े फसादात उसी की निगरानी में हुए, और जब मुसलमान एमपी को वहां जाने तक की इजाजत नहीं थी। तो ये मुख्तसर दास्तान है हमारी कि ब्राह्मणवाद ने सबको अपना गुलाम बना रखा है, और उसका एजेंडा ये है कि यहाँ से इस्लाम और मुसलमानों को खुरच कर फेंक दिया जाए। तो हमें एक रहनुमा चाहिए जिसके बारे में दुनिया कह सके, मुस्लिम ममालिक कह सके, यूएनओ कह सके, आलमी अदालत कह सके, दुनिया का हर इंसान कह सके ये है मुसलमानों का नुमाइंदा। और वो मुस्बत बुनियाद पर हो, मनफी नहीं, नेगेटिव बुनियाद पर नहीं हो। शुरू में मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद का यही कहना था कि मुसलमान मुत्तहिद होकर अपना ग्रुप बना लें, रियासत दर रियासत कायम कर लें, और दावेदार तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात करें, जो मुतालबात को हाँ कहे उसके साथ चलें। अगर बाद में उसने बेवफाई की तो फिर सोचेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हो जाता। उस ज़माने में बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, अकाबिर मौजूद थे, नहीं हो सका। अब है तो बहुत मुश्किल, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो हमारी जो सोच है अभी वो फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उस पर 6 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि बात को आगे बढ़ाया जाए। और आप सब सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है, वो भी हमदर्दी से गौर करें, रहनुमाई करें और बताएं। उसमें यह है कि हमें किसी ऐसी पार्टी को इख्तियार करना पड़ेगा
जो हिंदू तौ का जो RSS का एजेंडा है उसका मुकाबला हर रियासत में कर सके। और वो अभी एक ही पार्टी हमें नजर आती है, महाराष्ट्र की शिवसेना। सब जानते हैं बाल ठाकरे साहब, वो भी हिंदुत्व के हामी थे। बल्कि जब ये सारे बेईमान अडवाणी समेत कह रहे थे नहीं मस्जिद को हमने हाथ नहीं लगाया, बाबरी मस्जिद खुद ब खुद गिर गई, और इनकारी थे कि हमारा जुर्म नहीं है इसमें, उस वक्त में बाल ठाकरे सीना ठोकर कहते थे कि हमने गिराया, हमें फख्र है इस पर। लेकिन एक बुनियादी फर्क है कि बाल ठाकरे शिवसेना जिनको मानती है शुरू से आखिर तक, शुरू करो तो शेवाजी से। शेवाजी जो थे वो मुस्लिम दुश्मन नहीं थे, उनकी फौज में कम से कम 40% मुसलमान थे। आज 2% भी फौज में नहीं है मुसलमान, सेकुलरिज्म में। उनकी नेवी मुसलमान उसका जिम्मेदार था, इब्राहिम गादरी। सदी बिलाल, सदी हमजा उनके बड़े बड़े सालार थे, और कम से कम 40% मुसलमान थे। उनके बाप दादा वो मुस्लिम रियासतों में गोलकंडा, बीजापुर वहां पर बड़ा ओहदा था उनका, यानी सूबेदार थे। और उनके दादा एक बुजुर्ग के मोतकिद थे, शाह शरीफ जी, उनकी खिदमत जाया करते थे दुआ करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटे के नाम, एक का नाम शाह जी, एक का शरीफ जी, शाह शरीफ जी के नाम पर रखा। शेवाजी ने जितने किले फतह किए उसमें उन्होंने मस्जिद जरूर बनाई ताकि जो मुसलमान है वो नमाज पढ़ सके। जब शेवाजी को तख्त नशीन का वक्त आया तो जो ब्राह्मण, ऊंची जात, अपर क्लास, कोई उनको तैयार नहीं था कि ये शूदर, यानी उनमें है जिनके हाथ लगाने से ये ब्राह्मण नापाक हो जाते हैं, जिनके छूने से। इलाके का कोई, यहां तक के 1200 किलोमीटर से बनारस से एक गाबा भर जो इसी इलाके का ब्राह्मण किसी जमाने में उसको बुलाना पड़ा। और उसने इस तरह लूटा कि आप जब मारकों में, लड़ाइयों में थे तो उसमें कोई गाय भी मरी होगी, कोई ब्राह्मण को भी नुकसान हुआ होगा, कोई ये भी हुआ होगा। 1 करोड़, उस जमाने के 1 करोड़ 400 साल के, आज के बताइए कितनी रकम होती है। खजाना खाली कर दिया। फिर कहने लगा कि नहीं, आप पर हम वेद नहीं पढ़ सकते, आप नीची जात के हैं, शूदर हैं, आप पर हम कुरान पढ़ेंगे। शेवाजी ने अपना नसब नामा भी निकाल कर बताया राजस्थान के उनसे रजवाड़ों से, लेकिन उसने नहीं माना। बहरहाल उसके बाद ये ब्राह्मणों ने ये किया, शेवाजी का पोता जो है वो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास अपने औलाद की तरह पाला उन्होंने, और एक ऊंचे खानदान में मराठा, उसकी शादी भी करवाई, अपने पास रखा हमेशा। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो उनकी बेटी ने उन्हें रिहा कर दिया, छोड़ दिया। वो सबसे पहले औरंगजेब के मज़ार पर आए, शेवाजी के पोते, शाहू नाम था गालिबन। तो उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी मुगलों से और मुसलमानों से नहीं लड़ूंगा, और मेरे खानदान के दुश्मन तो यही है। जब उनके बाद जो कब्जा ब्राह्मणों ने किया, पेशवा कहलाया वो, पेशवा बालाजी बाजीराव। और अब तो फिल्में बड़ी गलत किस्म की, यानी नेगेटिव इमेज मुसलमानों को देने की फिल्में बन रही। तो इन्होंने शेवाजी की मां का जो महल था उसको तोड़कर इन्होंने अपना दरबार बनाया, शनिवार वाड़ा। आज भी मराठे चाहते हैं कि उसको दोबारा शिवाजी की मां का महल बनाया जाए। और उन्होंने शिवाजी के खानदान को नजरबंद कर दिया किले में, तुम बाहर नहीं निकल सकते। तो शुरू से ये मराठे जो है वो उन लोगों से ताल्लुक रखते हैं